ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شفافیت کے برعکس اقدامات کے خلاف عالمی سطح پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ عالمی مالیاتی احتساب، شفافیت اور 2030 کی ترقیاتی ایجنڈے کے حصول کی تکمیل سے متعلق تقریب سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ غیر مساویانہ معاہدوں کا ازسرِنو جائزہ لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی مالیاتی شفافیت کی پینل رپورٹ کی سفارشات کی توثیق کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے اندر اور بیرون ملک مالیاتی لین دین کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفافیت کے برعکس اقدامات کے خلاف عالمی سطح پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ ڈسکا ضمنی الیکشن پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ہمارے تحفظات ہیں۔ پی ٹی آئی امیدوار فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ فردوس عاشق اوان نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈسکا کے عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ فاتح امیدوار کو حلقے کی نمائندگی سے روکنا سمجھ سے بالا تر۔ شیخوپورہ شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران چند شرپسند تاجر ضلع انتظامیہ اور پولیس سے تعاون کرنے کے بجائے محاذرائے پر اتر آئے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے کارروائی کرتے ہوئے مین بازار، جناب پاک اور ریگل چوک سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی، شہر کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سے نوٹس لینے کی اپیل۔ خیرپور ٹامے والی میں پچھلے کچھ روز سے سیوریج سسٹم کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ پورے شہر کی مین شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گٹروں کی بندش کا تسلسل تیسرے روز بھی جاری۔ پانی کی بندش سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی۔ اسکول اور کالج جانے والے اسٹوڈنٹس، دکاندار، یہاں تک کہ عوام شہری بھی گھروں میں محصور ہو گئے۔ گندے پانی کے مسلسل ٹھہراؤ کی وجہ سے بچے بیمار ہونے لگے۔ وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کامران افضل سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ای سائن ٹیسٹنگ سینٹر کے قیام کا مقصد میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ زاہد نواز مروت، ڈی پی او وہاڑی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی زاہد نواز مروت نے کہا ہے کہ پولیس کو اسمارٹ ٹیکنالوجی کی جانب شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو شفاف بنانے کے لیے ای ٹیسٹنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے شہریوں سے کمپیوٹر پر ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ای سائن ٹیسٹنگ سینٹر کے پہلے ٹیسٹ کی مانیٹرنگ کے دوران کیا۔ ڈی پی او وہاڑی ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے امیدواران سے بھی ملے اور ان کے مسائل سنے، جبکہ ای ٹیسٹنگ کے حوالے سے فیڈ بیک بھی لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او وہاڑی زاہد نواز مروت کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو شفاف بنانے کے لیے ای ٹیسٹنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے کمپیوٹر پر ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ای سائن ٹیسٹنگ سینٹر کے قیام سے میرٹ کی بنیاد پر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے تحریری ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس ورک کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو پولیس سروسز کی آسان فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ وزٹ کے دوران ان کے ہمراہ ڈی پی او ہیڈ کوارٹر فلک شیر بھٹی بھی موجود تھے۔ خیرپور کے علاقے کوٹ ڈی جی میں آوارہ کتوں نے 8 سالہ معصوم بچی سادنا کو کاٹ کر شدید زخمی کر دیا۔
जख्मी बच्ची को मुकामी हस्पताल कोट टीजी मुंतकिल कर दिया गया है। सिंता कोर्ट के तहमात के मुताबिक जिस हलके में कुत्तों के काटने का केस जाहिर होगा तो उसी हलके के एमपीए पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि कोट टीजी हलके के एमपीए मुनव्वर अली विसान हैं, जो कि साबिका सूबाई वजीर के करीबी रिश्तेदार हैं। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का वासा की ज़ेरी तामीर नए वासा हेड ऑफिस का दौरा। इस मौका पर मुतल्लिका एक्सियन राना आदिल फारूक ने वीसी वासा को ब्रीफिंग दी। नए हेड ऑफिस की बुनियादों और बेसमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। वाइस चेयरमैन वासा अगले साल तक वासा का नया हेड ऑफिस इस्तेमाल में लाया जाएगा। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद वासा के नए हेड ऑफिस पे काम जोरों शोर से जारी है। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद वासा का कोई भी मखसूस हेड ऑफिस न होने की वजह से अवाम मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटने पड़ते थे। वही हसन कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब के अहकामात पर जारी हेलमेट और साइड मिरर मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की निगरानी में सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के ज़ेर एहतमाम सदर चौक साहिवाल में ट्रैफिक कवानीन आगाही कैंप का इनकाद किया, जिसमें अटलस होंडा के बाहमी इश्तराक से लाइसेंस याफ्ता शहरियों में बजरियाए कुरंदाजी हेलमेट, साइड मिरर्स, मास्क और ट्रैफिक कवानीन आगाही के बारे में पैम्फलेट तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल ने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और साइड व्यू मिरर्स की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हमा वक्त कोशा है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट, साइड व्यू मिरर्स वगैरह इस्तेमाल करना कानूनन लाजिम है। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही कैंप के इनेकाद को सराहा और ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करने की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन वजीर आला पंजाब शिकायत सेल जुबैर खान न्याजी ने मौजा हरबंसपुरा का दौरा किया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन वजीर आला पंजाब शिकायत सेल जुबैर खान न्याजी ने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरबंसपुरा में लतीफ कोगा के दफ्तर का विजिट किया। इस मौका पर लोगों ने अपने मसाइल से आगाह किया, खसूसन कच्ची आबादियों की मालिकाना हकूक पर बात हुई। इस मौका पर हिजवेरी स्कीम से मियां शहजाद, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आरिफ खान न्याजी, कोऑर्डिनेटर वजीर आजम पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन अब्दुल्ला न्याजी, मोहसिन लतीफ, शेख जैन और दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली, आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में मौजा हरबंसपुरा में हमारे पास आज तशरीफ़ लाए हुए हैं वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल के चेयरमैन जुबैर खान न्याजी साहब। नाज़रीन, आपको बताते चले इलाका का दरीना मसला है और इसको जो है वो हल कराने की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद जानते हैं जुबैर खान न्याजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर, लोगों ने काफ़ी आपसे सवाल किए, क्या समझते हैं कब तक हो जाएगा मामला? सर देखिए, मामला इतना सिंपल नहीं है कि फौरी तौर पे हल हो जाए। ये हुकूमत की ज़मीन पे बहुत बड़ी तादाद में आबादी बन चुकी है और जिनके पास मालिकाना हकूक़ नहीं है, और सबको पता है कि हुकूमत की ज़मीन है और इस पे एक आबादी बनती गई और लोगों ने बनने दी, पटवारियों ने, और उन्होंने लोकल जो इंतज़ामिया थी उन्होंने बनने दी, साल बनने दी। अब क्योंकि ज़मीन तो हुकूमत की है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें कि इनसे मकान भी ना। पार्टी के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात आ रहे हैं, कह रहे हैं नून लीग वाले भी कब्जा ग्रुप, तरीके इंसाफ के भी कुछ लोग जो है वो कब्जा में जो है वो मुलविस हैं। कब्जा ग्रुप का कोई तरीके इंसाफ नून कोई नहीं होता इसमें, जिसमें बेसिकली अभी तक आप मुझे बताया ना कि हमारी हुकूमत थी जो अभी तक ये बन गए हैं सारे। बेसिकली तो हुकूमत जिम्मेदार होती है ना कि अगर हुकूमत की लैंड पे कोई भी कब्जा होता रहा हो और हुकूमत वागजार ना कराना चाहती है। साहब ने वादा किया था कि पटवारियों को जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। पटवारी तो उस तरह ही सर काम, इस मौजे में तो स्पेशली आप किसी से भी बात करके देखें वो कहेगा पटवारी परेशान करता है। अंजाम का टाइम आने वाला है, कोई ऐसी मतलब नहीं। अंजाम को ये तो नहीं है कि फौरन आ जाता होता है। अंजाम का मतलब होता है आखिर में अंजाम हो जाता है इनका, कोई मसला नहीं है, लेकिन अंजाम की बात है, अंजाम हो जाएगा। आप देखेंगे इधर ही अंजाम देखेंगे, और अंजाम और बहुत सारों का होगा जिनका आपने जिक्र भी नहीं किया, वो मुझे पता है किस किस का अंजाम होगा। तो चढ़ने दें जरा, थोड़ा सा टाइम नेड़े लग गया सबका। समझते सर? लाहौर मेंटल हस्पताल में समझ कॉलेज की स्टूडेंट के लिए
हॉस्टल का इफ्तिताह किया गया। लाहौर कामरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा की काविशों से लाहौर में अपनी तर्ज का वाहिद कलील अरसे में तैयार होने वाला हॉस्टल है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद का कहना था कि ये अमल निहायत खुश आइंद है। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि इससे पहले हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए हॉस्टल के किराए की मद में अदा करना पड़ता था। आइंदा भी इस तरह के इक़दाम होंगे जिससे कौमी खजाने को फायदा होगा। इस मौका पर MS सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि डॉक्टर अयाज महमूद साहिब ने इस पर प्लानिंग शुरू की। तकरीब में सीनियर स्कॉलजिस्ट डॉक्टर अकीला अम्बरीन के साथ डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली, आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं मेंटल हॉस्पिटल में, हमारे साथ मौजूद हैं MS हॉस्पिटल के अशरफ साहब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो MS अशरफ साहब हैं, इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट में। आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया स्टूडेंट्स को जो मुश्किलात थी उनके हॉस्टल्स के हवाले से। मज़ीद जो है तफसीलात जो है वो अशरफ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डेजिग्नेशन हमारे इदारे का जो सा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ मैं। मेरे साथ दाएं जानब मेरे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब और MS सर्विसेज हॉस्पिटल सलीम शहजाद साहब चीमा साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। इस इदारे के बारे में थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जब ये विज़न था मिनिस्टर हेल्थ का, वज़ीर आला बुज़दार साहब का, कि यहाँ पे जो सा है ना सिम्स कॉलेज के साथ जब हमारी अटैचमेंट हुई है तो सिम्स कॉलेज को भी और इस इदारे को भी अच्छे तरीके से देखना है। तो मैडम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे विज़िट किया था, उस वक्त सलीम शहजाद चीमा साहब भी थे, साथ प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज साहब। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो सा ना बच्चियों के लिए फ़िल वक्त जो सा एक हॉस्टल बना दिया जाए, क्योंकि हमारे पास बच्चियाँ जो सिम्स कॉलेज में पढ़ने के लिए दूर दराज से इलाके से आती हैं। तो सिम्स कॉलेज 2 फेज़ में बना था। एक में तो उनकी एकेडमिक मीटिंग बिल्डिंग वगैरह तो बन गई थी, हॉस्टल का अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। बच्चों को अकोमोडेशन देना ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी इदारे की होती है। इस सिलसिले में जो से यहाँ पे हमारे पास एक ल्यूनेटिक वार्ड था जो अरसा दराज से खाली पड़ा हुआ था। उसका जो सा है CNW के तावन से उसमें इस्मतुल्लाह ढल्लू साहब थे, हमारे एक्सियन जोन से हैं कयूम साहब थे। इन सब की काविशों की वजह से इन्होंने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो सा है इसको बिल्डिंग को बनाया और मिनिमम खर्चे के साथ बनाया। तो उसमें ये था कि तखीर का शिकार था या नए सिरे से आपने लॉन्च किया? ये जो सा ना पहले हमारे जो सी वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, लेकिन उसको जो रेनोवेट करके उसमें जो सा है ना पार्टीशन करके तो इसको बच्चियों के हॉस्टल के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया गया। उसमें यह है कि इसके जो से 21 कमरे हैं, 7 वार्डन है, कैफेटेरिया रूम है, सारी चीज़ें फुल फ्लैज फैसिलिटीज़ है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप इसको विज़िट करें और देखें और हाईलाइट करें। हमारे हिसाब से ये पंजाब क्या पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो सा है हॉस्टल है कि एक कमरे में 3 बच्चियों की अकोमोडेशन और साथ अटैच बाथरूम है, फॉल सीलिंग भी है, सारा कुछ जो सा है, और इर्द गिर्द जो सा लश ग्रीन एरिया है उसका ये सारी चीज़ें और ये सारा क्रेडिट जो सा है हमारे मौजूदा प्रिंसिपल साहब को भी जाता है। के दौरान बता रहे थे कि कुछ एनिमल्स लाने का भी आपका प्लान है, वो क्या सर सिनेरियो जरा वो भी हमारे नहीं, एनिमल जो है ना वो ये है कि पहली बात तो ये कि इदारा जो सा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है और इसमें जितने भी साइकेट्रिस्ट और सबकी जिनसे एक यूनानिमस ओपिनियन होती है कि जितना आप नेचर के करीब हों आप जिस्मानी और जहनी नशोनुमा आपकी बढ़ती चली जाती है। इससे पहले ऑलरेडी हमने जो सा है यहाँ पे मिनी ज़ू बनाया हुआ है, यहाँ पे हिरन रखे हुए हैं, बल्कि उनकी प्रोडक्शन भी आगे हो गई है। इसके साथ बर्ड्स आइवरी भी है, उसमें मोर, फीजेंट हैं, तितर बटेर, खरगोश वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हैं। इसको मज़ीद हमने एक्सटेंड करना है और इसमें वो जो अट्रैक्टिव जो से एनिमल्स और बर्ड्स रखने हैं कि शाम के वक्त जो से ना हमारे जो मकीन है, जो ज़ेर इलाज मरीज़ होते हैं, हम उन्हें मकीन कहते हैं, वो मकीन यहाँ पे आके बैठते हैं और वो एक नेचर के करीब होते हैं तो उनको बड़ा ज़हनी आसूदगी सी मिलती है। इसको हमने मज़ीद आगे बढ़ाना है। सर आमतौर पर जो मनसूबे होते हैं वो बड़ा टाइम ले जाते हैं, कुछ मीटिंग्स बैठती हैं, बोर्ड्स बैठते हैं, फिर फैसला होता है। ये फौरी तौर पे मैडम यास्मीन राशिद साहिबा ने कैसे इसको जो है वो सर मैं वो कर दिया और ये तैयार भी हो गया सर? वो भी मैं ये था ना कि इसमें सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन हमारे एक्स प्रिंसिपल महमूद अयाज साहब और मौजूदा MS सर्विसेज हॉस्पिटल सलीम शहजाद चीमा साहब का भी था। मैडम ने यहाँ पे ब्लड बैंक में विज़िट कर रहे थे तो हम उनको जो सा ना यहाँ पे दिखाया, उन्हें बताया कि मैडम ये एक जगह है, अगर बच्चों के लिए हम कुछ कर लें वक्ती तौर पे सही। तो मैडम ने जो सा कहा कि आप इतने मिनिमम वक्त में कर लेंगे। उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ इस्मतुल्लाह ढल्लू साहब को, हमारे जो से ऐसी साहब थे, इनको जहमत दी गई
इन्होंने शाम 5 बजे से पहले जो सा ना मैप बना के सारा कुछ दे दिया। उसमें फिर उस वक्त के प्रिंसिपल और मौजूदा प्रिंसिपल साहब, इन्होंने हमें फंड में जो सा है ना कोई कमी नहीं आने दी, ना ही कोई बजट रिलीज़ होने में। और एक बात मज़ेदारी की मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सिम्स कॉलेज के PLA जो सा बजट था, उसमें से ये पैसा 38 मिलियन लगाया गया था। कितने वक्त में सर ये तैयार हुआ है? ये तकरीबन 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो सा ना रेनोवेट हो गया था। और आज जो सा ना सिर्फ इसका जो सा है बच्चियों को अकोमोडेशन देने के लिए पाकिस्तान में या पंजाब में स्पेशली पहले इस तरह का कोई मनसूबा इतनी कलील मुद्दत में आया? मेरा नहीं ख्याल कोई है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर विल पावर हो, गवर्नमेंट भी पीछे खड़ी हो, प्रिंसिपल साहिबान, MSS साहिबान और ख़ास तौर पे बिल्डिंग वालों का फेवर मिलती हो, तो बड़ी तेज़ी से ये हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अशरफ साहब, जिनका कहना था कि पाकिस्तान क्या, पंजाब में क्या, इस तरह का मनसूबा इतने कलील वक्त में पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर नाजिया गिलानी की ज़ेरे सदारत पार्टी ओहदेदारों का अजीज भट्टी टाउन में अजलास हुआ। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की जानिब से अजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने पर बातचीत हुई, जिसके बाद पास पेडा लीवर और शुगर सेंटर का विजिट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद जमील और दीगर स्टाफ से मुलाकात की गई। मोहम्मद जमील का कहना था कि अस्पताल में तमाम सहूलियात फ्री हैं। इस मौका पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फहद खालिद सबा, बटनीरा बेगम, मुनीरा हुसैन, सदर इंसाफ वेलफेयर विंग अजीज भट्टी, टाउन एडवोकेट मोहम्मद आसिफ और दीगर ने शिरकत की। अजी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा नाजिया गिलानी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन लाहौर की। इनसे जानना चाहेंगे आज का जो एजेंडा है वो क्या है, पार्टी का नैरेटिव क्या है, और जो आवाम को है वो क्या सहूलियात आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस शुक्र है, अल्लाह का करम है। क्या एजेंडा आज की मीटिंग का? आज हमारा ये था कि हमने अपनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अपनी यूसीज में टाउन में विजिट किया है और उनके ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। हम अपनी यूसीज को, अपनी उनकी टीम की जो ख़वातीन हैं उनको एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो उसका जिसकी हमने मीटिंग की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वुमेन विंग में तो यूसीज में कम अज़ कम हमारे 11 12 मेंबर हैं यूसी में। तो इस तरह तो वो काफ़ी लंबी हमारी वो लिस्ट है, उसका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि काफ़ी मतलब लोग हैं हमारी वुमेन विंग में। तो यही हमारा एजेंडा है कि हम मुल्क के हालात बेहतर करें, ख़वातीन को लेके आगे चलें, ताकि खान साहब का जो विजन है, आपको पता है, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन जीती है और इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने वोट भी। बस देखिए ना, एक बंदा है, इतने लोगों की उम्मीदें तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह करेगा आगे भी बेहतर होगा। देखिए ना, एक 30 साल का बिगड़ा सेनेट के इलेक्शन के बाद कोई बड़ी तब्दीली आने वाली, आप क्या कहती हैं इस बारे में? इंशाल्लाह ज़रूर हम जीतेंगे, सीटें लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सेनेट में होगी, तो हम वो बनाने में, आइन बनाने में हमें आसानी होगी, कानून बनाने में तो हम आगे चलेंगे। और बिल्कुल, और वो दे रहे हैं खान साहब, ये उसे कहते हैं, अगर आज यहाँ तहरीक इंसाफ अगर आप देखें तो 60% ख़वातीन पे मुश्तमिल है, और इस पार्टी को ख़वातीन ही लेके चल रही हैं। अब आज हमारे यहाँ निकलने का भी मकसद कि एक यूसी से हम औरतें निकालें, किस लिए कि आने वाले इंतखाबात में अपने आने वाले जो MPs, MNAs, कौंसलर्स वगैरह को उनकी अगर जो कैंपेन हमारी तरफ से जाएगी वो मेल नहीं कर सकते, इसीलिए ख़वातीन को इस प्लेटफॉर्म में मेरे ख्याल में ज़्यादा आगे आने का मौका मिल रहा है। और इंशाल्लाह खान साहब का ये विजन है कि वो और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा समझती हैं सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद औरत का होना। बिल्कुल, ये तो मैं कहती हूँ, अगर एक औरत सेहतमंद नहीं है तो माशरा तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। एक सेहतमंद माँ, औरत, बच्ची, बहन से ही पूरी एक, अगर वो घर को देख रहे तो आप समझे पूरे एक माशरे को वो चला रही है। जी नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं, ताजपुरा का इलाका है, यहाँ पर अपनी तर्ज का वाहिद हॉस्पिटल है, लीवर हॉस्पिटल, जिसको 1-2 फलाही तंजीमें मिलकर चला रही हैं। हमारे साथ इसके जो CEO हैं वो मौजूद हैं, इनसे जो है वो मज़ीद तफसीलात जो है वो जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। और आपके जो चैनल के तवज्जो से मैं लोगों तक एक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये इमदाद बाहमी की तर्ज पे ये हमने इसको शुरू किया था।
یہ لوگوں کو ڈونیشن پہ چلتا ہوا یہ ہاسپٹل ہے. جو بیسک مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کے ایسے تمام مریض جو اس کے مرض میں مبتلا ہیں ان کا تشخیص کی جائے اور ان کو فری علاج مہیا کیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم پچھلے 10 سال سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور پچھلے 2 سال سے یہ ہاسپٹل کی کنسٹرکشن تھی اور اس سال یہ ورکنگ حالت میں آ گیا ہے. یہاں آنے والے تمام مریضوں کو ہم ہر طرح کا فری علاج دے رہے ہیں. پرنسپلی یہ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں روزانہ کی بنیاد پر 8 اسپیشلسٹ جو کہ FCP اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ہیپیٹائٹس کا PCR، ایکو کارڈیوگرافی، ECG اور اس کے لیے تمام اسپیشلسٹ ٹیسٹ بھی ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہیپیٹائٹس کا شکار ہے وہ اس کے علاج سے محروم نہ رہ جائے. تھینک یو. جی، تمام مکاتب فکر اور تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے صرف انسانی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس ہاسپٹل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام ٹیسٹس بھی فری ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیکلی سہولیات ہیں وہ بھی سب فری دی گئی ہیں. ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے.